Okay, class. Today we will discuss about this logical operators. Last time we have seen bitwise operators. Bitwise operators are those operators which works upon bits 0 and 1. But the total, it is a little difference between logical operator and bitwise operator. Okay, just let me do one thing. Let me compare these two operators first. Okay. We have seen last example. Okay, anybody tell me, suppose this is my bitwise operator. This is my bitwise operator. Sir, Bitwise. your screen not visible. So screen Okay, is but, not visible. The Sir, screen is not visible. okay, okay, No, it's not visible. okay. I'm just presenting. I forgot. Is visible now? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Okay. Last time we have seen about bitwise operators. Okay. And we tell me what is the input of bitwise operator? What is your input? What is your input? What kind of value we give? Decimal number. डेसिमल Decimal number. नंबर डेसिमल नंबर Decimals. आप मेरे से मार खाओगे सारे बच्चे Binary. No, sir, Binary. binary number. ऑब्वियसली बाइनरी Binary नंबर number. अब डेसिमल बाइनरी नंबर को नंबर कन्वर्ट करके डालते हैं. exactly the input of this bitwise operator is binary number. You need to convert decimal number into binary number. Class, you remember? Class, you remember? Yes, Don't get sir. confused. And tell me Yes, sir. what is your output? Decimal The number. decimal number. Decimal. Decimal numbers. Okay, just remember beta yahan pe, please don't get confused. The bitwise operators always takes binary numbers and gives decimal numbers. What? Okay, tell me what is decimal number? What is decimal number? Combination of Sir, 0 to The 0 to 0 9. to 9. combination of 0 to 9. ओके 0 to 9 मतलब क्या होगा बेटा नंबर क्या स्टार्ट हो सकता है 0 से लेकर 9 तक कहीं भी नंबर वेरी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 मतलब इसका आउटपुट 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर्स ओके क्लास तो बेटा याद ध्यान रखना दिस इज द थिंग bitwise operator takes binary as input and decimal number and gives decimal number as output. Okay, we have seen the example. Now it is when we talk about logical operators, there are three operators like logical and logical or logical not. आप यहाँ पे देखो bitwise operator में सिंगल एंड था बेटा यहाँ पे हम क्या रहेंगे double end for logical. Don't get confused. Single end for the bitwise operator, double end logical operator, logical or and logical not. You can see here this is the block diagram for logical operators. It takes binary decimal number as input and gives binary number, just opposite of this bitwise operator. Class this is yes, sir. okay, this is logical operators. Logical operators. As I told you, what it takes, madam? What it takes? Decimal number. Decimal. Decimal number. number. Okay. It takes decimal number as input and gives Binary number. Binary number. binary number. Please इस चीज को याद रखना. Sorry, binary number. Okay, हम देखते हैं 1 by 1 क्यों होते हैं. Okay, tell me why do we call bitwise operator as bitwise because it works upon bits. Class, is it clear? Because ये bits पे काम करते हैं. Then why do we call logical operators logical? Because it finds the logic. How? You can see this truth table like A B. I have taken like A 0 1 0 1. मुझे एक काम करते हैं, एक मैं एक्सेल शीट में आपको समझाता हूँ. Just wait a minute. Okay, class. The first thing what we'll do, A, second is B, third is A and B, A or B, and what was the last? Last क्या था? Not
plus not of A or not of B. Okay. Take any number 0, like मैं पहले लेता हूँ 0 1 0 1, सबसे सिंपल से स्टार्ट करता है. ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 1 1. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, क्लास अभी विजिबल है? क्लास क्लियर है? विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Just do one thing. Just tell me. Okay. What is the 0 and 0? This bit logical and no, not bitwise and 0 and 0. It kind of multiplication. क्या है बेटा आउटपुट? 0 Zero. 0 1 and 0 and 1. 0 0 0. 1 and 0. 0. 0 1 and 1. 1. 1 1. This is OR operation, logical OR. It kind of it is a kind of addition. So okay, 0 or 0, 0 or 0, 0 0 0 0 or 1, 1 1 1 1. 1 or 0, 1. 1 1. or 1, 1. 1. 1 Okay. Not of A. Not of A means क्या होगा बेटा? ध्यान रखना कि it's opposite of, because अगर 0 तो नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो तो सॉरी, अगर 0 है तो क्या होगा बेटा? नॉट ऑफ 0 क्या होगा? 1 होगा. हाँ, और से समझ आया? तो एक बताओ, नॉट ऑफ 0, नॉट ऑफ 0 1 1. 1 One. Sorry. एक second. Not of 0 is 1. Okay. Not of 0 1. 1. Not of 1 0. 0 not of 1 0. 0. 0. 0 Okay, great. Not of 0, sorry, B के देना. Not of 0 क्या है? 1. 1 Not of 1. 0 0. 0 Not of 0 1 1. 0 0. Okay, class. सर लेकिन आपने जो बताया था लास्ट टाइम हमने बिटवाइज, इट इज सिमिलर लाइक दैट. यस, इट इज सिमिलर लाइक दैट. बट बेटा यहाँ पे क्या था? मैंने बताया अभी डायग्राम में. You have seen it takes decimal number as input and gives binary as output. तो ये तो क्लियर है कि हमेशा क्या होगा बेटा? ये जो आउटपुट होगा हमेशा ये फॉर्म क्या होगा? हमेशा बाइनरी ही रहेगा. क्लास समझ आ रहा है बेटा? ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बेटा? बाइनरी. Yes, sir. बिकॉज ये चेंज नहीं होने वाला. बट अगर दोनों जीरो वैल्यू है बेटा तो हम आउटपुट क्या आएगा? एंड ऑपरेशन में क्या आएगा बेटा? एंड ऑपरेशन में क्या आएगा? 0. अगर यहाँ पे लिखता हूँ 234 एनी नंबर, आप ये दिन देखो 0 एंड ऑफ एनी नॉन जीरो, 0 ऑफ 0 आपका वैल्यू रहेगा एंड एनी नॉन जीरो वैल्यू, तो आउटपुट क्या आएगा हमेशा मेरा? 0. 0. अगर कोई भी नॉन जीरो, सपोज लिखा मैंने सपोज 3640, तो 3647 एंड 0 कितना आएगा आउटपुट? 0. 0. 0. दोनों नॉन जीरो हो गए. मैं 1 को बोल सकता हूँ 1 मतलब नॉन जीरो, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सपोज यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिख दिया सपोज 78, आउटपुट क्या आएगा बेटा इसका? 1. 1. 1. तो मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ. इट टेक्स डेसिमल नंबर एज इनपुट एंड गिव्स बाइनरी एज आउटपुट. क्लास समझ आया बेटा? ये हमारा क्या बेटा? इनपुट है. क्या हमारे इनपुट. और ये हमारा क्या बेटा? ये जो हमारा जो 4 हमने आउटपुट दिया क्या बेटा? ये हमारा क्लास क्या बोलेंगे इसको? Output. तो बोल सकते हो कि हमेशा, हाँ इसको ध्यान रखना बस आप लोग. ठीक है, आप में से ध्यान रखना कि कैसे इनपुट शो करेगा, कैसे आउटपुट आपको बताना है. एक से ना इसको अच्छे से बताता हूँ. ठीक है, ओके. Now you can see these are my outputs and these are my inputs. तो input can have decimal number. अब इससे input और output हमेशा क्या होगा बेटा? बाइनरी. क्लास इज इट क्लियर? क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, आप मुझे हेल्प करना. ठीक है, उसके बाद एक मानसी ने क्वेश्चन बताया वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, F5 मैंने बताया, कमेंट कर लो. कमेंट क्या होगा बेटा? लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, सो दैट आप जब भी कोई ओपन ये नोटबुक फिर से ओपन करो, अपना प्रोग्राम ओपन करो तो समझ आए कि इस प्रोग्राम क्या है. ओके, व्हाट फर्स्ट थिंग वी डू जस्ट सेव योर फाइल The फर्स्ट. header file. header ओके, file. फाइल सेव कर लो. ठीक है, logical.c, any logical name, yes we override. Okay, hash include header file, hash include, what is next beta?
Conio.h. और hash include stdio.h. stdio.h. Okay, can I write stdio.h before conio.h? Can I write? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, okay, sir. right. The sequence Yes, sir. doesn't matter. Okay, but the matter is you need to add those header files. Okay, okay. Now void main. Okay, and take integer value a something, suppose b equals to 0 something, जो भी आप ले लो, c. Okay, clr can I write clr before this integer? Write clr before this integer? No, sir. No. No, sir. No, sir. Because in Turbo C++ or Turbo C editor, your compiler says you are not allowed this clr function before any variable declaration. बताएंगे आप C++ में कहीं पर भी आप लिख सकते हो, no issue. ठीक है, हम लिखते हैं c equals to a logical and b, and I'm printing the value of c like slash and यहाँ पे लिख लो value of c is %d. % is for the decimal number input, decimal number print करने के, ठीक है. Gate ch. Okay, save your file again. Okay, now run your compiler code first. No error. Okay, run your code. वैल्यू कितना है बेटा आपका? 0. मैं पूछना भूल गया आपसे, सही है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा क्लास? सर आएगा. आएगा, sir. ओके ओके, अगर मैं करता हूँ बेटा यहाँ पे सपोज 0 and 0, 0 and 0, व्हाट इज आउटपुट? 0. Sir, 0. 0. गुड, 0. ओके ग्रेट. ओके सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 120 13 ले लो, सपोज लिखा 56, व्हाट इज आउटपुट? 1. ओके ग्रेट. तो यहाँ तक कोई डाउट है क्लास? कोई डाउट है? No, डाउट? sir. Okay. Sir. Suppose, okay. Changing suppose A or B. Okay. Anybody tell me what is 13 or bit logical or and 56? और में क्या आएगा बेटा? 1. The 1 आएगा. 1 आएगा. Good, great. Okay. Suppose यहाँ पे मैं करता हूँ B को मैं क्या चेंज करूँ इसको? B को 0 कर दूँ. 13 और 0. 1. The 1. Good. It will be 1. Okay. 13 0 and 0, 0 or 0. The 0. 0. Okay. Great. Okay, class. So you're getting the point. Okay. एक मैं बेटा इसमें कोई डाउट है? अभी तो कोई डाउट है क्लास? कोई डाउट है? No, sir. Okay, No, sir. एक और मैं करता हूँ. C equals to मैंने सपोज लिया not of A. What is value of A बेटा? What is value of A? 0. Not of A मतलब क्या होगा बेटा? Opposite of 0 मतलब non 0, 1 आएगा. 1. Okay. So you can run your code, you will get 1. Okay. I'm just solving now the question of, एक सेकंड ना मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन पहले. ओके बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? मैं इसको कमेंट कर दूं? कमेंट कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ये मैं पूरे के पूरे कोडिंग यहाँ पे कमेंट कर दूं, ठीक है? इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं ना, एक साथ बहुत सारी लाइन को एक साथ कमेंट कर सकते हो. ओके, नो इशू. द क्वेश्चन इज लाइक दैट. सपोज इंट a equals a comma I equals to 12 suppose. Okay, CLR SCR skin clear. Now a equals to 24 or minus I, and int f % d यहाँ पे लिख लो. सपोज a equals to %d and I equals to %d, और यहाँ पे लिख लो a comma I. क्वेश्चन बहुत बार पूछे कैंपस में, ठीक है? और तो एक और मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा इसको थोड़ा चेंज करके, ठीक है? मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए, सोच के बोलना आप लोग. क्लास Sir, 1. ए की वैल्यू कितना आएगा बेटा? ए कितना आएगा? 1. ओके, 1, और आई कितना आएगा? 11, 11. 11. 1 और 11. ओके, और कोई? 12.
ठीक है, ये आएगा 1 और 12। गुड। ये कंफ्यूजन देखो ना, आपने सामने बोला ना 1 और 11 क्यों आएगा, आप लोग मैं जितना भी समझा वो आपसे करेक्ट है, बट लॉजिकल थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या आता है बेटा, आप इमेजिन करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं करता हूँ कोई भी एक लिखा मैंने b इक्वल्स टू, मैं कोई भी वैल्यू ले लिया, कोई भी नॉन जीरो ले लिया और लिखा और कोई भी यहाँ पे, अच्छा ये बताओ बेटा, मैं दो ही नंबर मुझे ऑरिंग करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे सब लिख दिया मैंने d, तो यह क्या, जिसके b की वैल्यू हम आउटपुट क्या आएगा, बिना बताओ बिना d जाने b की वैल्यू क्या बताओ, बिना देखे डी की वैल्यू, आपको डी की वैल्यू नहीं पता, मुझे बता सकते हो बी की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन बेटा समझ आया, ऑब्वियसली 1 होगा, बिकॉज आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं डी की वैल्यू 0 भी करूं तो 0 और जो नॉन 0 तो 1 ही आएगा ना क्लास, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, Yes, Yes, sir. 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 without knowing the value of d, without knowing the value of d you can tell the value of b, how, because any non zero value, आप किसी भी नॉन जीरो को और करते हो, किसी भी जीरो या नॉन जीरो के साथ, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, क्लास समझ आ रहा है क्या, Yes, क्लास समझ आ sir. रहा है, the same logic compiler does, the same logic compiler does over here, how, because compiler sees there's a non-zero value and I'm using ORing operation, तो compiler अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करता है, वो आगे चेक ही नहीं करता, बिकॉज वहां पे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे नॉन जीरो है और यहाँ पे और है, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे चाहे जीरो है या नॉन जीरो है, आउटपुट हमेशा 1 ही आना है, क्लास गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, द कंपाइलर डज नॉट सी दिस ऑपरेशन, ये इसको इग्नोर कर देता है उसके बाद, इसीलिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट नहीं हो रही है, क्लास गेटिंग माई पॉइंट, Yes, sir. सर वो आई Yes, की sir. वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं हुआ बट है यहाँ पर आई की इसीलिए। वैल्यू तो दी है, तो फिर वो क्यों नहीं ले रहा है? नहीं मैं बता रहा हूँ उसको, अभी आप अभी यहाँ पे प्रिंट कर लो, जैसे आपने मैंने बताया ये समझाया बेटा, यहाँ पे कंपाइलर करता क्या है, व्हाट कंपाइलर डज, सिंपली क्या करेगा, चेक करेगा बेटा वो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने किया बेटा b इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर लिखो नॉन जीरो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये इसके वैल्यू से बोलता हूँ 0 करता हूँ, सपोज 0 और d करता हूँ आपका 1, आउटपुट क्या आएगा बेटा, हमेशा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा, अगर Yes, sir. 1. 1 कब Yes, होगा, sir. अभी 1 कब होगा, जब यहाँ पे कंपाइलर अभी चेक करेगा यार, अगर 0 है तो कंपाइलर आगे चेक करेगा और के साथ, आ रहे समझ, बिकॉज अगर मुझे टोटल आउटपुट दिखाना है मुझे, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे अगर वैल्यू, अगर यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई तो आपके यहाँ पे आउटपुट क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, Sir, 0. 0. तो ऑब्वियसली अगर मैं पहले ही मैंने 1 कर दिया, तो चाहे यहाँ पे आप 0 लिखो या फिर 1 लिखो, डजेंट मैटर, आउटपुट हमेशा क्या आना है बेटा, क्या आना है, 1. 1। तो ये कंपाइलर क्या करता है बेटा, जब भी कंपाइलर सोचता है कि अगर सिर्फ हम दो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे लॉजिकल और के साथ, अगर मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू अगर नॉन जीरो लिख देता, ऑब्वियसली सेकंड वैल्यू चाहे 0 या 1 वो हमेशा 1 ही आएगा, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू, अगर यहाँ पे आप एक काम करो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पे 0 कर दिया, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 कर दिया, क्लास एक सेकंड, यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे देखो वैल्यू मैंने 0, इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने क्या 0 और माइनस माइनस आई, अभी आउटपुट क्या आएगा बताओ, अभी बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पहले से यहाँ पे 0 लिखा पहले से, तो ऑब्वियसली बेटा मुझे अभी यहाँ बताओ, अगर मैं और किया हूं तो यहाँ पे अगर नॉन जीरो आएगा तो क्या होगा, नॉन जीरो तो क्या होगा, Sir, 1. 1 1. आएगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो क्या आएगा, 0। 0. Sir, 0. अभी यहाँ पे मुझे माइनस आई की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्लियर हो रहा है, समझ, क्लास समझ आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. अभी वो चेक करें तो माइनस आई की वैल्यू कितना होगा, 1. Sir, 11. 11. ठीक है, समझ आया बेटा, मानसी, Yes, sir. क्लियर और नॉट, Yes, sir. It's clear. ओके गुड, तो ये क्वेश्चन समझ आया बेटा कैसे हो रहा है, अगर यहाँ पे इमेजिन बेटा समझ आ रहा है क्या, प्लीज मैं रिपीट करने को रेडी हूँ, कोई डाउट है इसमें, क्लास में डांटूंगा नहीं, प्लीज बताओ, तो यहाँ पर A1 क्यों आया? ओके A1 क्यों आया, बिकॉज A1 क्यों है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, और ऑपरेशन है ना, और ऑपरेशन में क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है 0 और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस आई, मतलब Minus 12 I. 11 हो गया, तो यहाँ पे इंडायरेक्टली लिखा क्या है बेटा 0 और 11, तो कितना आएगा बदमाश, कितना आएगा 1. सर 1 आ गया सर. गुड, तो यहाँ पे अगर चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है,
मैं एक काम करता हूँ, सी इक्वल्स या ए कर, या चलो ठीक है सी या ए कर लो। ए इक्वल्स टू मैं करता हूँ सपोज 0 एंड माइनस माइनस आई, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस आई। तो ए की वैल्यू कितनी होगी और आई की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 0 होगी, So A A की equals to वैल्यू 0 और I equals to I 11. की वैल्यू 11। सोच के बोलना, 11 होगा, सर I की वैल्यू 12. 12 होगी, 12 होगी। 12 Yes sir 12 होगी. 12। आया बेटा समझ में? वो आई इनिशियलाइज नहीं हो रहा है ना सर? नहीं, आई हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया बेटा, 12 ऑलरेडी हम इनिशियलाइज कर चुके आई को। बट बेटा यहाँ पे देखो, अगर 0 हमने किया और एंड लगाया तो इंक्रीमेंट होने के बाद हाँ आगे चेक ही नहीं, बिकॉज 0 के साथ एंड करना मतलब ऑब्वियसली बेटा आगे जितना आप चाहे 0 लगाओ या नॉन 0 लगाओ, वो आगे मतलब आउटपुट हमेशा 0 ही आना है, तो उसको कंपाइलर आपको इग्नोर कर देता है। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया आगे सर। एक लास्ट आप मुझे बताना, ठीक है? लिखा 19 Yes sir. एंड माइनस माइनस आई। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मैं एंड रखना, ध्यान रखना। A की वैल्यू A की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 11. 11। गुड, आया बेटा समझ? Yes sir. यस सर। सभी होशियार यस सर। होशियार बच्चे मेरे, गुड शाबाश। कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, कोई डाउट है प्लीज पूछ लो। सर जस्ट रिपीट इट। रिपीट करूं? ओके, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, ठीक है? मुझे आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो इस चीज में। अगर एक सेकंड में आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे आप मुझे बताना, ठीक है? मुझे ये परफॉर्म करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे लिखना है 12 एंड 0। आउटपुट क्या आएगा? 0. 0 है। 0. कैसे बता बेटा? 12 एंड 0। 0 ओके, मैं अगर करता हूँ 0 एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ a इक्वल टू कितना आएगा? मुझे a की वैल्यू नहीं पता। 0. 0। 0. यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 भी होती तो भी 0 आएगा, 1 अगर a की वैल्यू नॉन 0 तो भी 0 आएगा। समझ आ रहा है क्या? तो कंपाइलर करता क्या Yes, बेटा? sir. यहाँ पे ध्यान दो, कंपाइलर करता क्या है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया बेटा, तो अगर मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे चाहे 0 हो, a की वैल्यू या नॉन 0 हो, आउटपुट में से क्या आना है? 0 ही आना है। तो कंपाइलर टू सेव इट्स ओन टाइम उसको इग्नोर कर देता है उसके आगे, बिकॉज उसको पता है कि आउटपुट क्या आएगा। आ रहा है समझ बेटा? समझ आया? अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं सपोज और यहाँ पे करता हूँ a इक्वल्स टू, मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। क्यों आउटपुट बनाएगा? बिकॉज आपको तो a की वैल्यू नहीं पता, चाहे बेटा a की वैल्यू से 0 हो या 1 हो या कोई भी नॉन 0, आपको आउटपुट में से क्या आना है? 1 आना है। तो इसलिए क्या करते हो, जैसे और देखा और यहाँ पे चाहे वो इग्नोर कर देगा a की वैल्यू, चाहे आपका 0 या नॉन 0, उसको आगे चेक ही नहीं करेगा। तो कंपाइलर सेव करने के लिए टाइम को अपने वो क्या करता है, बाकी चीजों को इग्नोर करता है, एक्सप्रेशन को। समझ आया क्या? क्लास क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते, वाइवा में, सॉरी इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर इज क्लियर क्लास? शुड गो अहेड? Yes sir. यस सर। गुड गुड। ओके, बैक टू माय स्लाइड। आप एक काम करते हैं, ये हो गया, क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर है। लीप एरर प्रोग्राम मैं आपको बाद में कराऊंगा इसका। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इंक्रीमेंट से आएंगे, लॉजिकल से आते हैं, या बिट वाइज से भी आ सकते हैं। मतलब ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लैंग्वेज सी। ओके, तो यू कैन सी व्हाट डू बाय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्शनरी मीनिंग क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की? इंक्रीज और प्लस डिक्रीज। 1 इंक्रीमेंट हाँ और यार। -1 डिक्रीमेंट। हाँ गुड, -1 और या देखो मैं उसमें टेक्निकल में जा रहा हूँ। इंक्रीमेंट मतलब जो इंक्रीज होगा, डिक्रीमेंट जो डिक्रीज होगा। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट, व्हाट डू बाय प्री? प्री प्री मतलब पहले पहले पहले। और पोस्ट मींस, पोस्ट मतलब बाद में। बाद में। बाद में। ओके, तो नाउ दिस प्री, प्री मतलब प्री हैविंग टू ऑपरेटर्स अगेन, और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो आप जब बात करते हो, इसको हटा दो बेटा, एक सेकंड,
Okay, suppose I am talking about pre increment. इसमें देता हूँ इंक्रीमेंट. इसमें इंक्रीमेंट पहले होगा कि बाद में होगा बेटा? इंक्रीमेंट पहले होगा? पहले होगा. पहले होगा. पहले. आएगा प्लस प्लस ए कोई वेरिएबल नेम है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, प्लस प्लस ए. देन पोस्ट इंक्रीमेंट. इसमें इंक्रीमेंट बाद में होगा पहले होगा? सर बाद में होगा. तो ए प्लस प्लस ये डिनोशन ये सब डिनोट करोगे, ठीक है. उसके बाद मुझे बताना आप लोग प्री इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट. पहले इसमें क्या डिनोशन कैसा है इसका? पहले डिक्रीमेंट हो, सॉरी प्री क्या लिखा है? डिक्रीमेंट है ना, सॉरी डिक्रीमेंट. क्या कोई आउटपुट क्या आएगा? तो कैसे इसको डिनोट करोगे आप लोग? तो माइनस माइनस ए. माइनस ए. ओके ग्रेट. ओके बाद है पोस्ट डिक्रीमेंट. हाउ विल यू? A minus minus. कैसे करो बेटा? ए माइनस माइनस. ए माइनस Sir, your voice is not clear. The voice Yes, sir, your voice is is lagging. not clear. प्री मतलब पहले जो सर आपकी वॉइस जो ब्रेक हो रही है. Yes, sir, बहुत ज्यादा. बाद में. ओके ओके मैं आपको एक प्रोग्राम लिखता हूँ. चलेगा चले. ओके आवाज आ रही बेटा क्लास? Yes, sir, आ रही है. Sir. Yes, sir. I think I have lost my connection. Okay. Screen visible है नहीं है अभी? Due to network issue, lost my connection. Okay, now visible class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My question was, Yes, sir. where is my printf function is defined? Where is my function printf defined? In which header file? Anybody?
सर कोनियो सर एसटीडी आयो एसटीडी STD आयो। कोनियो किसने बोला था? कोनियो सर किसने मैंने नाम? बोला था। नाम क्या आपका? सर आरती अग्रवाल। ठीक ठीक। कहाँ पे बेटा अभी कहाँ पर एसटीडी प्रिंट ऐप कहाँ किस हेडर फाइल में है? किस हेडर फाइल में है? stdio.h। ओके ग्रेट, बोलना नहीं ठीक है। ओके मैं आपको यस ये सर। फंक्शन यहाँ पर है। ओके ओके प्रिंट ऐप, यू कैन सी प्रिंट ऐप, द प्रिंट ऐप function is defined inside this stdio.h header file. Okay, before print this printf, you can see there's a convention underscore cdecl. What do we call it beta? Underscore cdecl. Okay, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। Okay, मैंने बताया भी, नाम लिखा। इसको बोलते हैं बेटा फंक्शन कॉलिंग कन्वेंशन। फंक्शन कॉलिंग कन्वेंशन Okay, there are two types of function calling convention. कोई पूछे इंट्रो टाइम, आप बताना बेटा। पहला क्या है मैंने बताया था, अंडरस्कोर cdecl एंड सेकंड वाज Pascal. पास्कल। तो इसका मतलब क्या होता है आप ये समझना, फंक्शन कॉलिंग कन्वेंशन मतलब ये होता है हाउ डू वी कॉल द फंक्शन, हाउ डू वी कॉल द फंक्शन। सपोज इफ यू हैव अंडरस्कोर cdsl कॉलिंग कन्वेंशन, तो आपको फंक्शन कॉलिंग होगा आपका राइट टू लेफ्ट। कैसे होगा बेटा आपका? राइट टू लेफ्ट, याद रहेगा क्लास? राइट टू लेफ्ट। अगर पास्कल है तो कॉलिंग कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट ना, याद रहेगा क्लास? लेकिन सर ये कॉलिंग कन्वेंशन क्या होता है, हम कैसे इसको कॉल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब बेटा अगर किसी फंक्शन के सामने इफ इट इज रिटर्न अंडरस्कोर cdecl, मतलब आपका कॉलिंग कन्वेंशन क्या होगा? प्रिंट एफ आपका क्या है बेटा? अंडरस्कोर cdecl लिखा था क्लास? प्रिंट एफ का लिखो अंडरस्कोर cdecl लिखा है, मतलब मुझे फंक्शन जो कॉल करना है वो राइट से लेफ्ट जाना है। क्लास इज इट क्लियर? मीन्स मैं पहले ये सॉल्व करूंगा बट राइट से, फिर आगे जाऊंगा लेफ्ट में। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव क्लास? जस्ट आंसर मी, हाउ मेनी वेरिएबल्स? वन वेरिएबल नेम इज a. ओके सपोज लोकेशन, हाँ लोकेशन इज 1000। सपोज व्हाट इज दिस ऑपरेशन बेटा? अंडरस्कोर cdsl सॉरी clsl क्या करेगा? clsl क्या करता है? प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करेगा। And this is my output screen. Suppose this is my output screen. Output screen. Okay. Suppose I have something पहले से कुछ लिखा हो यहाँ पे, तो उसको पहले से लिखा हो, तो ये फंक्शन क्या करेगा? clsl क्या करेगा बेटा? उसको क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? क्लियर कर देगा, क्लियर कर देगा। तो आपने जो पहले से लिखा है बेटा, तो आप स्क्रीन में क्या करेगा? उसको क्लियर कर देगा। ओके नो good. And what is next operation? Printf function. Printf function is having calling convention like underscore cdecl. ये calling convention है। तो मुझे क्या सॉल्व करना बेटा? राइट से लेफ्ट जाना है मुझे। क्लास राइट से लेफ्ट, तो दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट, तो मुझे ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्लास यू रिमेंबर? क्लास यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes sir। ओके ओके वी हैव इनिशियलाइज्ड वैल्यू एज, हम यहाँ पे 3 लिखा था, हमें याद है, हम a को वैल्यू 3 ले लिया। ओके अब यहाँ पे सॉल्व करो बेटा। व्हाट इज दिस बेटा? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट है कि प्री डिक्रीमेंट है? पोस्ट डिक्रीमेंट। Post decrement. प्री वाले Post decrement. प्री वाले कौन है? नाम बताओ, प्री किसने बोला? नाम बताओ, नाम बताओ, सर मैंने बोला सर, गलती से निकल गया। नाम बताओ सर आरती अग्रवाल। बेटा यहाँ पे माइनस करते यारो मार्क्स, ठीक है? नहीं बेटा ऐसे ना, सॉरी सर। कोई बात नहीं। पोस्ट ये क्या बेटा आपका? पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके क्लास, मतलब आपको ये पता होना चाहिए इफ इज अ पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या होगा? पहले वैल्यू प्रिंट होगी, बाद में डिक्रीमेंट होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट नाम से समझ आ रहा होगा। तो वैल्यू क्या बेटा आपकी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3? व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 3। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पहले प्रिंट क्या होगी बेटा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। एनी डाउट? फिर बाद में डिक्रीमेंट होगी, तो वैल्यू कितना डिक्रीमेंट हो गया? पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया बेटा? 2। a की वैल्यू 2 हो गई सर। हाँ 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। तो वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो a की वैल्यू कितना आपका है? 2 है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ वैल्यू कितना हो गया आपका? 3। नाउ इट गेट्स प्रिंटेड, दिस इज 3। ओके व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? पोस्ट डिक्रीमेंट। तो वैल्यू पहले बाद में डिक्रीमेंट होगी, तो वैल्यू कितना बेटा आपका यहाँ पे? 3। आफ्टर दिस वैल्यू विल बी डिक्रीमेंटेड। तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे? 3 का कितना हो गया आपका यहाँ पे? 2। के बाद यहाँ पे ध्यान दो,
ये आपका है प्री डिक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, बाद में प्रिंट होगी। तो अभी आपके वैल्यू कितना बेटा, अभी 2 है, डिक्रीमेंट कितना होगा आपका, डिक्रीमेंट कितना होगा 1 1, इसका आंसर आएगा 1 3 3 3। एनी डाउट क्लास, एनी डाउट क्लास, एनी डाउट? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर जैसे ये अंडरस्कोर CDECL पे काम कर रहा है, तो अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे कि 2 वेरिएबल है A और B, उनकी कोई वैल्यू डाल दें, और जब हम लोग उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो सर वो लेफ्ट वाला पहले प्रिंट करता है, देन राइट वाला करता है ना? नहीं नहीं, तो वो सर प्रिंटिंग का, ये ऑपरेशन के लिए बेटा, वो ऑपरेशन नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। आप वो प्रिंटिंग का अलग है, यहाँ पे जो ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है बेटा, वो ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जो भी कुछ एक्सप्रेशन में आप परफॉर्म करते हो, तो वो हिसाब से वो सॉल्व होना स्टार्ट होता है। अगर आप कॉमा यूज करो, मल्टीपल टाइम्स कॉमा यूज करो, वो प्रिंट नहीं कर, प्रिंट तो एज ही प्रिंट करेगा बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, ये प्रिंट तो, ये ऑर्डर देखो, प्रिंट हमारा ऑर्डर यही सेम प्रिंट करेगा, यही प्रिंट करेगा, ऑर्डर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन है पहले वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन आपका सही है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा कि आपने पूछ लिया बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, देखो मैंने ऐसे यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट किया है, हमने देखो यहाँ पे जो प्रिंट होगा, ये आपका ये जो आपको परसेंट ये वैल्यू प्रिंट करेगा, सेकंड परसेंट ये प्रिंट करेगा, थर्ड परसेंट थर्ड वैल्यू, फोर्थ परसेंट फोर्थ वैल्यू। तो ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट जो ऑपरेशन का ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, कि मुझे पहले क्या सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। गुड। यस सर। तो अभी मैं रन करके देखता हूँ कि वेदर आउटपुट इज कमिंग और नॉट। आंसर इज 1 3 3। आए बेटा क्लास? यस सर। यस सर। ओके चलो, आप मुझे एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना, मुझे आप लोग हेल्प करना, ठीक है? मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग सॉल्व करके बताना। ओके सपोज मैं करता हूँ इसको 7, और बढ़ा ले, परसेंटेज बढ़ा लें क्या? परसेंटेज यस सर। 10% करते हैं, ठीक है? 2 और बढ़ाते हैं, e प्लस 9, और यहाँ पे कर देते हैं सपोज प्लस 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 ए। सॉल्व इट क्लास, सॉल्व करके बताओ मुझे। एक काम करते हैं, इसको ए प्लस प्लस कर लेते हैं। ओके अभी थोड़ा ठीक है, क्या सॉल्व करो इसको। सर बाय डिफॉल्ट CDCL में रहेगा कि पास्कल में रहता है सर? बाय डिफॉल्ट CDSL में है। ओके सर। आंसर बताओ जल्दी, कौन बताएगा? Any answer? Plus? Any answer? Sir, सर आंसर सर 8 16 7 7 7 सर 17। एक ही करे बोलो, क्या है बेटा? 17, आगे 16 4 times 7 Sir 8 16 7 7 7 7 4 times 7 8 16 4 times अच्छा 8 x है ना? हाँ 16 16 4 times 7। ओके ओके देखते हैं। हाँ मुझे भी आंसर नहीं पता इसका, सॉल्व करें हम लोग, क्लास सॉल्व करें? टाइम यस सर। यस सर। आप लोग मुझे बताना, ठीक है? थोड़ा हेल्प करना। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए क्लास? इनिशियल में क्या? सर 7। ओके गुड 7। ओके करेक्ट सर, लेकिन मेरा 8 18 आया सर। ये 18 है क्या? मेरा आया। हाँ ओके सही है। अभी है, मुझे भी नहीं पता बेटा, ठीक है? आंसर मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्व होगा पहले, तो ये क्या पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो वैल्यू पहले क्या होगी? प्रिंट होगी, बाद में डिक्रीमेंट होगी, तो वैल्यू आपका पहले ये आएगा आपका 7। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका क्लास? कितना हो गया? 6 हो गया। 6।
उसके बाद ये देखो, ये आपका है प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में प्रिंट होगी। तो वैल्यू आपकी कितना 6 था, कितना हो गया बेटा ये? सर 7 7। ओके, तो वैल्यू आपका प्रिंट हो गया 7। ओके, देन ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, तो वैल्यू पहले क्या होगी बेटा? वैल्यू पहले क्या होगी? प्रिंट होगी। तो प्रिंट होगी। प्रिंट होगी, बाद में क्या होगी? ये बाद में क्या होगी? इंक्रीमेंट। तो 7 इंक्रीमेंट हो गया बेटा, इस बार 8 हो गया। 8 हाँ 8 हो गया। उसके बाद है माइनस माइनस ए, मतलब पहले प्री डिक्रीमेंट, तो वैल्यू पहले क्या होगी? डिक्रीमेंट होगी। डिक्रीमेंट कितना हो गया? यस सर। 7 7, तो ये आपका आ गया 7। गुड। उसके बाद है आपका a प्लस 9, ए कितना आपका? 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16 सर 16 16। ओके, द नेक्स्ट इज प्लस प्लस ए, पहले इंक्रीमेंट होगी, प्री इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू कितना हो बेटा? इंक्रीमेंट हुआ 8 फिर बाद में। गुड, तो ये आंसर करेक्ट है सेकंड वाला। समझ आया क्या क्लास इज इट क्लियर? यस Yes, सर sir. Yes, sir. यस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। एक सेकंड, ये आपको आएगा, एक सेकंड, कहाँ गड़बड़ है? सॉरी, ये आपका आएगा 8 16 4 टाइम्स 7। आई होप क्लियर हो रहा है। जो डाउट था प्लीज समझो। कुछ डाउट है क्लास? कुछ डाउट है क्लास? एनी No, डाउट? sir. ओके नो सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। दर्शन ने मुझे अटेंडेंस भेज दिया है, तो डोंट सेंड अटेंडेंस, है ना? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सो मच। एनी डाउट स्टिल नाउ? अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी डाउट? शुड आई क्लोज? यस सर। सर आज आप शुरू से पढ़ाए वो कौन मैं सा? लेट से ज्वाइन हुआ क्यों लेट से ज्वाइन किया? सर, काम आ गया था सर, तो घर का काम काम कर रहा था। तो काम करो ना बेटा।